Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. हाँ, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग संगीता मैम। सर बहुत अच्छे हो रहा है। Good morning, sir. Good morning, everyone. हाँ जी। गुड और मॉर्निंग मैम। Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning. मैम सभी प्रेजेंट हैं, सब ऑल आर प्रेजेंट। Yes. Yes. बच्चों, आज आगे बढ़ने से पहले रिकॉर्डिंग मैंने आपकी आरंभ कर दी है ताकि आपको लाभ मिले। लघु कथा सुनाओ में आप में से 10 से 11 बच्चे रह गए हैं अभी। तो ये स्टोरी टेलिंग या कथा कहानी क्यों सुनाते हैं? तो उस पे सीबीएसई ने एक मिशन चलाया है 100 डेज का, कि 100 दिन कम से कम बच्चे ये करें। तो वो एक वीडियो हम टीचर्स के लिए भी है यूट्यूब पे। तो आपको भी मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कई सारी चीज़ें। तो 5 से 7 मिनट का मैं आपको दिखाऊंगा कट शॉर्ट करके। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, तो आप बताएं, दिखाई दे रहा हो तो। यस सर। ओके। They mixed in the platform, that is also more essential, so that ultimately with this reading habit, whatever CBSE is aiming gradually the competency based assessment. आवाज क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. बढ़ाऊं थोड़ा सा? बता दीजिए, नहीं तो। सर, इसमें वीडियो भी है क्या? मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। सर। हाँ, बच्चों आपको ये नहीं दिख रही है वीडियो? And any competency based assessment, be it PSAT. हेलो। No, sir. वो रुका पड़ा। Yes, sir. वीडियो नहीं आ रहा है, मुझे लगा शायद वीडियो भी है इसमें। ठीक है मैडम, मैं फिर से शेयर करता हूँ। Yes. सर वीडियो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? एक सेकेंड, कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ। कोई बात नहीं सर, हो सकता है मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। हाँ जी। कोई नहीं सर। Inspired. If you look into the questions pattern, even अब आ रही है आवाज? for Yes, sir. यस सर। our CTET question paper load also gradually, if we look into, I think the teacher's competency as well as children's competency needs more reading load, and without reading habit, I think this is quite impossible to achieve. Otherwise, सर क्या कह रहे हैं? बिना रीडिंग हैबिट के हम कुछ नहीं कर सकते। आवाज वीडियो दोनों दिखाई दे रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके। हाँ, बस इम्पोर्टेंट दिखाऊंगा इसमें से और फिर आपका काम शुरू। post assessment, there would be some newspaper article, CBSE out of the box question puch raha hai, or maybe it is creating some problem. Just to avoid that, I think it is time now in 2022 January, if we take a place, yes, every teacher also gradually enhance their reading load. Because I know you all as a school leader and competent teachers, you know your curriculum very much, because there was no massive change over a period of time. So at this point of time, if we can enhance our reading load, I think gradually we can motivate the children to enhance their reading load. And without अब यहाँ से देखिए। world scenario environment which wouldn't have been possible otherwise. Let us say we were in a small town somewhere and you start reading, you can go anywhere. You could go with people who are into adventures, or you could follow Alexander on his tour. And the good thing about reading is that it's suggestive. I mean, it's written there, but then your imagination can run wild, and you can start imagining things. And there are tremendous benefits or advantages of reading in terms of, you know, developing you as an individual, your emotional repertoire, developing empathy in you. I mean, you may be reading a story, but then there's so many people with different viewpoints, with emotions and all. That enriches you as a person. You can get inspired. I mean, you can read biographies or other stories, or even common people who, you know, undergrown, shown great resilience and done wonderful things. So you can get inspired, and you can just expand your knowledge in a very creative and fun manner.
And these advantages all come through reading. Now, the challenge before us is, I think, the competition which has come from instant gratification, games, TV, and everything is ready in a capsule in 5 minutes, quick response things and all, which obviously the mind finds it easier rather than something long, patient. Bring something for everybody. They help us create images. They help us to connect with the learners also. Now, I'll invite Rohini ji to talk more about how stories can be such a powerful tool for a teacher. Rohini ji is a person who wears multiple hats. She's a voice artist. She's an early years educator. She has been a part of curriculum development also. And she has been a very critical element in one of our earlier Teachers Connects program. Highly appreciated by teachers. We got so much positive feedback. Welcome to the platform, Rohini ji. We all are keen to hear from you. Thank you so much, ma'am, and thank you everybody else for having me here. I'm just going to share my screen so that we can go through the slides. So as we've been talking about storytelling as a pedagogy and placing stories at the heart of a lesson, when stories are placed at the heart of a lesson, the entire process of learning becomes immersive and experiential. In fact, there's a lot of scientific research around this. That when बच्चों आपके लिए उपयोगी है? Yes, sir. हाँ, okay. stories become a part of anything, then in our brain there are certain portions that get stimulated and highlighted, and those portions are exactly the ones that get highlighted when you're experiencing something, which means that storytelling is so immersive, it's as good as experiencing something. Chemicals like cortisol, dopamine, oxytocin are released in the brain. But what about it? Why and how are these chemicals helpful to us? Well, cortisol is related with memory. And as teachers, as educators, I think when we are trying to put across anything in a lesson to our children, what we want is for them to memorize, for them to retain what we are teaching them. And that's where cortisol plays a role. Dopamine helps with managing of emotions. There's something called attention span in children. थोड़ा सा और कर शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ बेटा. So, as language skills, any language that you're telling the story in, it fosters language ability, vocabulary, comprehension, and memory. So when they're recalling the story, when they're sequencing the story, and it happens automatically, when you tell them a story, they automatically start processing the story and they start recalling it. And when they're sequencing the story, it is leading to memory making in the children. And that's exactly what we want, right? As educators, we want them to understand and we want them to retain the lesson and for as long as possible. And that's exactly what stories do. And if you're talking about a classroom culture, so when you're telling stories, and when you're using certain catchphrases, some certain words, certain vocabulary, which you are as an educator mindfully integrating into your stories, those become accessible to your students. Your entire class culture absorbs those words. It should be the right length. Paucity of time is something that we are all as educators very, very conscious of. So a well-practiced, a well-rehearsed story which fits within the time frame of the lesson and serves the purpose that it is intended for, is how you kind of integrate the right story into your lesson. Of course, there are various other things that your teaching purpose entails. It should develop listening skills, comprehension skills, communication skills, life skills. But then, you know what? The moment you tell stories to children, these skills are automatically getting developed in those children. And how can you make your storytelling session effective?
from my experience, if I if I share my experience with you, I think what is most effective is the way the story is told. Your facial expressions, your voice expressions, where are you pausing, what words are you emphasizing on? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, बस और 2-3 मिनट Yes, का sir. दिखा के, हाँ, फिर उसी तरह से आपको करना है कि ये अनावश्यक नहीं है। लघु कथा सुनाओ या स्टोरी टेलिंग, ये अनावश्यक नहीं है, इससे आपको बहुत लाभ है। What are your hand gestures conveying? What is your body movement conveying? Are you making eye contact with your children? Are you adding humor here and there? All these are very important aspects when it comes to making your storytelling session effective. And all this works as a package deal, you know. Everything from voice expressions, from facial expressions, to the right time limit, to emphasizing on the right words, to breaking ice properly, to, you know, chants that you introduce before the lesson, to the interactive is this, to understand what really voice expressions do to the words that are being spoken. Feeling and mood. You know, I always tell, whenever I'm training teachers, I always tell them that sharing a story is a sensory experience. You know, as a storyteller, the mood that you're conveying, the feelings that you are experiencing, the emotions that you're feeling, or the characters in your story are experiencing, should be conveyed to your listeners. At that moment, when you're telling the story, you and the listener, the storyteller and the listeners, should become one with the story. You should start experiencing what the characters are going through, the highs and the lows of the emotions, how the story is moving. And how does it happen? When you speak the words with the right feelings and emotions. Now, I'm going to demonstrate one or two over here. And of course, you can practice this on ये आपके लिए लास्ट है और इसके बाद फिर ठीक है। your own later. But if we were to start with the first one, did Anya give Pia her red shoes? Here we will emphasize on the word did. Did Anya give Pia her red shoes? You said so, but did she really? And if we go to the next one, did Anya give Pia her red shoes? Or was it Zoe? You see how just by stressing on one word, the entire meaning of the disappointment. Schools closed in Delhi today following heavy rain, and at a moderate rate, to simply state a fact. You see how just by changing the speed, the pace, I'm changing the emotions with which the बच्चों, इससे आपको काफी लाभ मिला होगा। संगीता मैम भी हमारे साथ हैं, वे भी बता सकती हैं कि कितना जरूरी है स्टोरी टेलिंग। तो अब बारी है आदेश आपकी। रोल नंबर वाइज ही हैं जो छूट गए थे, जो भी कहानी सुनाए। देखिए, आरोह अवरोह, कहाँ उतार चढ़ाव, कैसी आपकी भाषा हो। हेलो मैम। हाँ हाँ सर। हाँ जी, इन्हें बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में? हाँ सर, इम्पोर्टेंट होता है, इंटोनेशन इम्पोर्टेंट है, मॉड्यूलेशन इम्पोर्टेंट है, हाउ एंटरटेनिंग यू कैन मेक इट। इसलिए मैडम हमने रखा है कि इसको भी समय दें थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ। वैसे बहुत जरूरी है सर, एक्सप्रेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और यहीं से 8th क्लास तो एक तरह से बस यहीं से पहली सीढ़ी 8th ही है। डेफिनेटली, और हमारे यहाँ तो सर 10th में भी है क्रिएटिव राइटिंग। हाँ, इंग्लिश में 10th में भी क्रिएटिव राइटिंग है। अभी मैम CBSE ने 27 को किया था ये जारी। ये 100 डेज का रखा है कि 100 डेज का मिशन है ये। ओके मैम। बहुत इंटरेस्टिंग था सर, बहुत इंफॉर्मेटिव था ये। हाँ जी, बस कट शॉर्ट दिखाया मैडम थोड़ा सा इन्हें। मैं अपने सभी साथियों को भेजा था, मैं भाई बच्चों को भी दिखाओ और खुद भी समझो इस चीज को। ओके मैम, थैंक। आदेश जी आप चले। 10 स्टूडेंट रह गए थे।
3 मिनट का समय है आपके पास। हाँ, पहले तो अपनी लघु कथा का शीर्षक दें। सर इसका शीर्षक है खूनी झील। ओहो, खूनी झील। आहा, बढ़े आगे। सर एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी। वह झील खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। ओके। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता। एक दिन चुन्नू नाम का एक लड़का उस झील के पास पानी पीने गया। हेलो सर, सुन रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखो, बीच बार बार मैं आपको ओके कहता रहूँगा। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, बचपन में हमारे एक पिताजी के मामा यानी दादाजी थे। वो कहानी सुनाते थे तो कहते थे कि कहानी के साथ में हुंगारा देना चाहिए, तभी मैं कहानी सुनाऊंगा। तो आपको भी शायद हुंगारा वाला चाहिए तो। यस सर, हमारे यहाँ पे भी कहते हैं। यस सर, हाँ, तो हम्म। हाँ, ठीक है ना? तो सर शुरू करें? हाँ, शुरू करें। हाँ, एक दिन चुन्नू नाम का हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। शाबाश जग्गू बंदर। हाँ, जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब भी प्यास लगती तो वह झील के पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह झील में पानी पीने गया तो उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नी हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नी हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैंने तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहे हैं, उसे हमने तो कभी नहीं देखा। इसका मतलब है वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है, जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तब मानेंगे या जब खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को झील से भगा दिया और जंगल में खुशी खुशी से रहने लगी। शाबाश, बहुत अच्छे। सब क्लैपिंग करें आदेश के लिए। शाबाश, बहुत अच्छे। अब बहुत दिनों बाद बोले हैं, अच्छा बोले हैं। एक आध जो कमी रही है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कमी का समय नहीं। एक बार आप बोलना आरंभ करें बस, है ना? शाबाश। अब बारी है आदेश के बाद अलीना हबीब। यस सर। रेडी हैं? ओके, यस सर। बढ़े आगे। हाँ, जैसे एक आदमी था जो बहुत गरीब था। वह हमेशा काम की तलाश में घूमता रहता था। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक दुकान में काम मिल गया।
मगर उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते थे, तो वह दुकान के पैसे चोरी करने लगा। अब उसके मन में आया कि उसे तो बिना किसी मेहनत के अच्छे खासे पैसे मिल जा रहे हैं, फिर क्या मेहनत करना। और इसी तरह वह आलसी होता गया। दुकान के मालिक को तो पहले चोरी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने उस आदमी को दुकान से निकाल दिया। अब उसके पास चोरी के कुछ पैसे, और उसने कुछ पैसे उधार लेकर अपनी दुकान खोली। लेकिन वह इतना आलसी हो गया था कि उसे अपनी दुकान पर भी काम करने में अब बहुत आलस आते थे। वह कुछ कमाता नहीं था, और घर के खर्च और उधार चुकाने की वजह से उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी, और वह फिर से वैसे ही गरीब हो गया। और जब इंसान में आलस आ जाता है तो वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। शाबाश, बहुत अच्छे। आपकी लघु कथा अच्छी थी, आदेश की भी अच्छी थी और आपकी भी। शाबाश, क्लैपिंग तो किया करो बच्चों सारे। हाँ, ओके, धन्यवाद बेटा। आगे बढ़े। अब बारी है अनुज शर्मा। यस सर। हाँ जी, रेडी हैं? यस सर। सर, मेरी कथा का शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक बार की बात। बेटा मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप बढ़े आगे। अनुज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ सर थोड़ी अच्छा, प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है। कितनी बाधाएं आए, आप ना डरे ना रुके। ठीक है, ओके। सर एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक कबूतर रहता था। उसी के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन चींटी नदी के किनारे से जा रही थी, तब तक पानी के एक झोंके ने चींटी को अपने साथ ले लिया। चींटी पानी से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, तब तक कबूतर ने ये देख लिया। उसने ऊपर से एक पत्ता गिराया और चींटी उस पत्ते पर चढ़ के बच गई। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर देखा तो वह पेड़ के पीछे छिप गया और उसने दाने डाल दिए और अपना जाल बिछा दिया। यह होते चींटी ने देख लिया तो चींटी ने कब जाके सीधे शिकारी के पैरों पे काट लिया, जिससे कबूतर ने देख लिया और वह चौकन्ना हो गया और वह बच गया। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। दलवीर के नेटवर्क में इश्यू है कुछ, तो दलवीर से आगे बढ़ते हैं। ये बारी है ओम जी यादव। ओम जी, आप रेडी हैं? ओम जी, प्रशांत। यस सर। हाँ, आप बढ़े आगे। सर मेरी कहानी का शीर्षक है हंसेल और ग्रेटेल की कहानी। एक सेकंड रुक जाओ प्रशांत। ओम जी भी है लाइन पे। ओम जी, आप बोलो पहले। यस ओम जी। बेटा आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत आप कंटिन्यू करें, ओम जी आप बाद में, नेटवर्क इशू है कुछ अब। हाँ। मेरी कहानी का शीर्षक है हंसेल और ग्रेटेल की कहानी। एक गांव में दो भाई बहन होते हैं। लड़के का नाम होता है हंसेल और लड़की का नाम होता है ग्रेटेल। एक दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है और दोनों अपने पिता के साथ रहते थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे पर खुशी से एक साथ रहा करते थे। पर एक दिन उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी नई बीवी बहुत ज्यादा बुरी और गंदी थी।
एक बार उसने अपने पिता से कहा, अब पति से कहा कि उसे अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें खाना भी खिला सकें। पहले तो उसके पति ने मना किया, फिर अंत में मान गया। अगली रात को पिता हंसेल और ग्रेटेल को जंगल में ले गया। हालांकि हंसेल ने उनकी योजना सुन ली थी और वह जानता था कि उसके पिता दोनों को जंगल में छोड़ने गए हैं। इसीलिए उसने चलते चलते जंगल के रास्ते में कुछ सफेद रंग के पत्थर फेंक दिए। दोनों बच्चों के पिता उन्हें जंगल में छोड़कर घर वापस आ गए। अब क्या था, हंसेल और ग्रेटेल ने रास्ते पर पड़े सफेद पत्थरों की मदद से अपने घर को खोज लिया। अगले दिन उनकी बुरी माँ ने उन बच्चों के साथ फिर से वही किया, पर इस बार हंसेल ने कोई भी पत्थर नहीं लिए थे। इस बार रास्ते में कोई सफेद पत्थर नहीं फेंके थे, इसलिए उन्हें घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिला और हंसेल और ग्रेटेल सच में खो गए थे। दोनों भाई बहन अकेले चलते चलते थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगी थी। कुछ देर बाद अचानक उन दोनों को जंगल में एक सुंदर सा जिंजर ब्रेड का घर दिखाई दिया। भाई बहन दोनों बहुत भूखे थे और ब्रेड देखकर वे खुशी से उसे खाने लगे। इतने में एक बूढ़ी औरत आई और उनसे कहा कि वह उन दोनों बच्चों का ख्याल रहेगी। अब हंसेल और ग्रेटेल खुशी खुशी उस औरत के पास रहने लगे, पर वे नहीं जानते थे कि वह बूढ़ी औरत चुड़ैल है। उसने हंसल को कैद कर लिया और उसे मोटा बना दिया ताकि वह उस बच्चे को खा सके। उस शैतानी चुड़ैल ने ग्रेटेल से घर के सभी काम कराने को कहा। एक दिन उस चुड़ैल ने सोचा कि वह आज हंसेल को खा जाएगी और उसने ग्रेटेल को आग जलाने के लिए कहा। अब समय नहीं था। ग्रेटेल को अपने भाई की जान बचाने के लिए जल्दी सोचना था और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ग्रेटेल ने आग जलाई और उसने चुड़ैल से आग की लौ चेक करने के लिए कहा। जब वह शैतानी चुड़ैल आग की लौ चेक करने गई थी तो ग्रेटेल ने उसे आग में ही धक्का दे दिया और अपने हंसेल भाई को बचा लिया। इस तरह से ग्रेटेल ने अपने भाई की जान बचाई और दोनों भाई बहन वहां से चले गए। शाबाश, बहुत अच्छे। आप बस थोड़ा सा तेजी कर रहे थे, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे आप स्टोरी टेलर यानी कहानी सुनाने वाले भी और डिबेटर बन सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, अच्छी भाषण प्रतियोगिता में अच्छा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा बस, हाँ, तेजी पर विराम करना। शाबाश, बहुत अच्छा। अब दो तीन की ये बार बार क्या आ रहा है, रजत सक्सेना जी, आपका भी नेटवर्क, दलवीर का भी, सभी का नेटवर्क आज गड़बड़ हो गया क्या? जिनकी बारी आ रही है सुनाने की तो सुनाने के लिए, अब आप नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों? कहीं कहीं पीरियड आपके इसी काम के लिए रखे हैं कि आप बोलें। सबसे जरूरी है बोलना, आपका प्रेजेंट करना। ओम जी, आप तैयार हैं? शाबाश प्रशांत। ओम जी। हाँ, रजनीश। यस सर। आप बोले। सर मेरी कहानी का शीर्षक है चाबी और हथौड़ा। ओके। एक तंग गलियों में एक दुकान थी, ताले की दुकान थी। उसमें चाबी और ताला बेचा जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन हथौड़े ने पूछा चाबी से, बहन कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा कहती है, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, अब बोलिए। यस सर। तो वो कहती है कि मैं उनको चोट नहीं पहुंचाती, मैं उनके दिल को, हृदय को स्पर्श करती हूँ और उनसे प्यार से काम लेती हूँ। शाबाश। हेलो सर। हाँ, हेलो, बोलते रहिए, आवाज आ रही है अब। यस सर। तो कोई बात नहीं, आपके नेटवर्क में इशू है, वो बात कहती है कि
हाँ रजनीश, आप बाद में कर लेना, नेटवर्क इशू है कुछ। तो नहीं, आपकी मेहनत जो है व्यर्थ ओके जा रही है थोड़ा। हाँ ओके। हाँ तो मैं बाद में आपको। ओके बेटा। सचिन चौहान, आपने तो सुना दिया था। हाँ शिवानी। हाँ शिवानी जी। रजनीश आपका मैंने एक्सेप्ट किया, और ये बाद में भी आपको एक अवसर और दूंगा। शिवानी। यस सर। हाँ आगे तो बढ़िए। मेरी कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। आहा शाबाश। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास के एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने हुए चोगे के बिल में जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी देर बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे से मिलने उसके बिल पर जाता हूँ, लेकिन चूहा कभी मेरे जलाशय में मुझसे मिलने नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, हमारी मित्रता काफी गहरी हो गई है, अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक दूसरे को याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, शिवानी लेकिन हम ऐसा हेलो। क्या करेंगे। हाँ बेटा, यस आप सर। थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे जहां से आपका नेटवर्क ठीक हो जाए। थोड़ा सा आवाज में आपकी क्रैक हो रही है, ठीक है। हाँ एक बार कोशिश करके देखो। ओके आवाज आ रही है। क्लियर है। हाँ चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, हमारी मित्रता काफी गहरी हो गई है, अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और दूसरे किनारे से मैं अपना पैर बांध दूंगा, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम से राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई और कुछ देर छटपटाने के बाद वह मर गया। बाज आसमान से यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में तैरते हुए चूहे को देखा, वह तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे के साथ बना हुआ होने के कारण वह भी आसमान में उड़ने लगा। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वह सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज ने उसे भी खा लिया। कहानी से शिक्षा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। शाबाश, अति उत्तम, बहुत अच्छी बेटा। शिवानी के लिए सब क्लैपिंग तो कर दिया करो, नहीं करते, कंजूस हैं, है ना। कोई बात नहीं, दूसरों की प्रशंसा करना सबसे बड़ा वो है ना।
ये होता नहीं हमारे पास। हमारे लिए तो सब चाहते हैं कि ताली बजे, लेकिन हम दूसरे के लिए नहीं बजाना चाहते। कोई बात नहीं, शाबाश शिवानी, आगे बढ़े। अब बारी है सोम जी। जो रह रहे हैं उनको भी करना है पूरा, ऐसा नहीं कि किसी को अवसर नहीं मिलेगा, सबको अवसर पूरा मिलेगा। सोम जी, समय नष्ट ना करते हुए चलें आगे। तनु। यस सर। हाँ, आप बोलें। सर मेरी कहानी का शीर्षक है गुस्सैली लड़की। ओके, बढ़े आगे। एक छोटी सी बच्ची थी जिसको बहुत ही गुस्सा आता था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाती। जब उसको गुस्सा आता तो वो ये नहीं देखती कि उसके सामने कौन है, उसके मन में जो आता वो बोल देती। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और तोड़ देती। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। वो उसे अलग अलग तरीकों से समझा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी मम्मी उसके ट्यूशन टीचर के पास गई। ट्यूशन टीचर ही ऐसी थी जिनकी बात वो लड़की सुनती थी। उसकी टीचर ने उसकी माँ की पूरी बात सुनी और बोली, आप चिंता मत करो, कुछ दिनों के अंदर इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बोली, कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन टीचर आई और बोली कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक खेल खेलेंगे। यह सुनकर लड़की बहुत ही खुश हुई। टीचर बच्ची के साथ टीचर बच्ची के साथ दीवार के पीछे जाती है और वहां खड़ी होकर लड़की से कहती है कि अब जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें एक कील ले आकर यहाँ गाड़ देनी है। फिर बच्ची ने टीचर से पूछा, इससे क्या होगा? तो टीचर बोली, ये गेम जब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। उस बच्ची ने वैसा ही किया जैसा उसकी टीचर ने उससे बोला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो दीवार के पीछे जाती और एक कील गाड़ आती। जैसा कि उसको गुस्सा बहुत ही आता था तो पहले ही दिन उसने 10 कीलें दीवार पर गाड़ दी। उसे कील गाड़ने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ता, दीवार के पास फिर गाड़ना पड़ता। तो उस बच्चे के दिमाग में आया कि जितना मेहनत मैं इस कील को गाड़ने में करती हूँ उतने में मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक दिन ऐसा भी आया जब उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और उस दीवार पे एक भी कील नहीं गड़ी। तो वो बच्ची खुश हुई और अपने टीचर के पास गई और बोली, मैम आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और मैंने एक भी कील उस दीवार पे नहीं गाड़ी। तो टीचर उसके साथ दीवार के पीछे जाती है और वहां देखती है। तो टीचर उस बच्ची से बोलती है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन तुमको गुस्सा नहीं आए उस दिन के अंत में आकर तुम्हें इस दीवार से एक एक कील निकालनी है। तो बच्ची ने वैसा ही किया क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से अधिक लग गया कीलों को निकालने में। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन सारी कीलें निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश हुई और अपने टीचर के पास गई और बोली, अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो टीचर बच्ची के साथ दीवार के पास गई, उसे देखी और देखा कि दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसने उस बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और बोली, तुम इस प्राइज को जीत गई। फिर उस टीचर ने बच्ची से पूछा, तुमको इस दीवार पे कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, अब तो कुछ भी नहीं है, मैं सारी कील निकाल चुकी हूँ। उस टीचर ने बोला, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ दिख जाए। तो वो बच्ची दोबारा देखी और बोली, जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके निशान दीवार पर रह गए हैं। जब बच्ची ने यह देख लिया तो टीचर बोली, तुमने इस दीवार में कील गाड़ी, उसे निकाली, लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकी। ठीक
इसी तरह होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी पर भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाहकर भी नहीं हटा सकती, चाहे तुम जितनी मर्जी माफी मांग लो। यह सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रोने लगी। वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर उनके गले लग गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं आज के बाद आप पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या गलती की है। फिर उस दिन के बाद से वो बच्ची कभी भी गुस्सा नहीं की। बहुत सुंदर कहानी आपकी, सच में प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, सब कुछ है इसमें। और कुछ कहना चाहेंगे तनु? नो सर। ओके, शाबाश। बच्चों 3 मिनट रह गई हैं और 3 हमारे प्रतिभागी अभी हमें थोड़ा सा निराश कर रहे हैं। दलवीर, रजत सक्सेना और ओम जी, सोम जी। हाँ, 4 रहे हैं ये। तो ये अगली बार, एक बार मैं आपको बूढ़ी काकी की ओर लिए चलूंगा इस समय, क्योंकि अगले सप्ताह हमें बूढ़ी काकी कहानी करानी है। अगले सप्ताह नहीं, कल ही, इसी सप्ताह में कल और परसों हमारे 2 दिन हैं, है ना, 2 कालांश, उनमें हमारी पूरी हो जाएगी। 1 मिनट आपको दिखा दूं कि आपको कहाँ तक पढ़नी है। इन चारों बच्चों का होमवर्क ये रहेगा कि इन चारों से ही पढ़ाई जाएगी। ये पढ़ेंगे, कल पढ़ेगा पहले रजत सक्सेना। कहीं भी कोई बच नहीं पाएगा। यहाँ नहीं सुनाओगे तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। कैसे कहे? 2 मिनट रह गई बस, ये एक बार देख लें कल का टास्क। नेटवर्क बहुत स्लो है। दिखाई दी बच्चों बूढ़ी काकी? यस सर। हाँ, यस सर। ये कल हम पढ़ाएंगे। पेज हैं इसमें 9, तो 4 से 5 कल हो जाएंगे और ये चारों ही एक एक पेज पढ़ेंगे। सबसे पहले रजत, उसके बाद ओम जी, उसके बाद सोम जी और उसके बाद दलवीर। और आप पढ़ के आएंगे स्वयं भी। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये कल का आपका, कल आरंभ करेंगे। और आपके लिए होमवर्क ये है कि एक बार पूरी कहानी को पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। अब मुझे, ओके सर। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं। एक सेकंड।
बच्चों नेटवर्क का इशू आ गया था कुछ। हेलो। यस सर। हाँ मैं आउट हो गया यस सर। ओके ठीक है, तो अच्छी रही प्लानिंग अपनी, और कल ये पढ़ के आना। ओके बेटा। यस सर। ओके सर। रजत सक्सेना जी, हाँ आप लोग भी बोले। रजत है, सोम जी आज क्यों नहीं बोले? ये अभी भी नहीं बोल रहे आप लोग, तो बताओ पता। दलवीर, ठीक है तो जल्दी से ज्वाइन करो दूसरी क्लास। थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी।